बदलापुर में बहुत से लोगों के हाथ में स्कैम हुआ। Don't show our back to our own people. ठाणे वर्सेस बदलापुर। Compromises have to be made by us. बदलापुर के प्राइसेस कम हो गए। I certainly disagree to that. बदलापुर से इंटरनेशनल एयरपोर्ट नवी मुंबई का लोग ऐसा बोल रहे कि 30 मिनट में पहुंचा जा सकता है। कि ये पॉसिबल है? ठाणेकर बीकेसी वही 25 एकर्स का है। 1 लाख रुपए है तो क्या मैं बदलापुर में घर ले सकता हूँ? बदलापुर has more potential now to grow. बदलापुर आने से या इन्वेस्टमेंट करने से डर रहा है। People of Thanekar is a community that we are trying to build. टॉप 3 थिंग्स जिसकी वजह से बदलापुर बहुत ज्यादा फेमस हो गया। We still have a good AQI. अद्वैत सर, फॉर द व्यूअर्स जो थानेकर ग्रुप के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, जो बदलापुर का नंबर 1 डेवलपर है, आप उसको क्यों स्पेशल है, कैसे स्पेशल है, थोड़ा व्यूअर्स के लिए बताइए सर। Sir, see, as far as Badlapur is concerned, Thanekar Group has been prominent in Badlapur for the past 33 years. ओके। And it is all down to my father, Mr. Ajay Thanekar. उनके जो एफर्ट्स है, राइट, ही इज़ एन आर्किटेक्ट हिमसेल्फ, तो ही थिंक्स फ्रॉम एन आर्किटेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड जो वो टेक्निकल डिटेल्स में जाते हैं, ईच एंड एवरी डिटेल वर्किंग दैट ही डज, ही स्टिल एट नाइट ही वर्क्स लाइक एन आर्किटेक्ट, वर्किंग ऑन द प्लान, क्या कस्टमर की नीड है, क्या नहीं है, ही टेक्स वैल्यूएबल फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स एंड मेक्स रिविजन्स एंड एवरीथिंग। ऑल्दो वी हैव आवर ओन आर्किटेक्ट्स, बट उनका जो विजन है ओवर हिज लर्निंग्स ऑफ पास्ट 33 years, दैट हैज helped Thanekar group become the number 1 developer in Badlapur. सर, एवरी लैंडमार्क प्रोजेक्ट, आप चाहे बॉम्बे देख लो, दुबई देख लो, या कोई भी एक डेवलप सिटी या कंट्री में देख लो, एक डेवलप्ड प्रोजेक्ट के पीछे एक विजन होता है। तो थानेकर बीकेसी के पीछे क्या विजन था आपका? So sir, Thanekar BKC जो है, it is our dream project. Like not to boast a lot, but we have put our everything in this. We have not left any stones unturned for this. And जब आप बोलते हो कि ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो हमें हमेशा से एक सिटी स्केल का एक प्रोजेक्ट बनाना था, विच वी कैन कॉल कि ये हमारा सिटी है। ओके। सो जब obviously when it came to naming this project, we knew कि ये कातरप जो लोकेशन है बदलापुर का, this is the most prominent location of Badlapur. So that is how we came up with the name Badlapur Katarap City, and it just made the acronym as BKC. तो वो एक, it was a good marketing factor in that, but also BKC को अभी justify कैसे करना उस नाम को, तो we are bringing in a lot of commercial brands over here, like Tata Star Bazaar, Zudio, etc. etc. Plus there are going to be a lot of banks in Thanekar BKC itself. Along with that, for the people, there is going to be a hospital, a multi-speciality hospital. There is going to be a CBSE international school as well, and along with that, a 3-star hotel. Okay. So एक city में, in a land parcel of 24 acres, they are getting everything that is needed in today's day and age in a city. You are a new generation, a young blood of Thanekar group. So where do you see Badlapur in coming 10 to 15 years of time? Sir, I was born and raised in Badlapur, so absolutely, मतलब I to love this city, and we feel proud कि आता कि now we are calling it as a city. The future of Badlapur is in very safe hands. जे leadership roles मध्ये आहेत लोक आता, it is a mix of experience and youth. So if you look at the people who are in the controlling authorities of Badlapur, मग त्यात तुम्हाला experienced लोक पण दिसतील, पण a lot of youth leaders are also in there. Okay. And that is, I think, the perfect balance for development of a city. And as far as us, the developers or the builders of Badlapur are concerned, I think for the infrastructure development of Badlapur, we can play a very important role, where we have to ensure that we are in communication with the authority or the corporators and the leaders of Badlapur before commencing any project, की अजून आपण प्रोजेक्टच्या
अवतीभवती किंवा सराउंडिंगला असं काय करू शकतो की दॅट विल हेल्प अपलिफ्ट द लाईफस्टाईल ऑफ पीपल ऑफ बदलापूर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनी रूल्स और रेग्युलेशन्स ॲट द सेम टाइम. तसं आता बदलापूरची पॉप्युलेशन एवढ्या रॅपिडली ग्रो होत आहे. बिफोर स्टार्टिंग एनिथिंग यू हॅव टू थिंक अबाउट की हाऊ विल वी मॅनेज द ट्रॅफिक फ्लो, हाऊ विल वी मॅनेज द व्हेरियस जे बॉटलनेक होतात सगळीकडे, ते कसं आपण मॅनेज करणार. मॉन्सूनचं एक वेगळा चॅलेंज असतो ॲज यू नो करंटली जे चालू आहे त्याच्यामुळे. सो वी हॅव टू एन्श्युअर एज डेव्हलपर्स दॅट वी आर इन कॉन्टॅक्ट विथ दोज अथॉरिटीज अँड वी वर्क in balance with them. Few compromises have to be made by us as builders. Safe to say we are businessmen, but at the heart we are still people of Badlapur. So first and foremost interest मध्ये बदलापूरच आहे. बदलापुर और अंबरनाथ के बीच में एक नया रेलवे स्टेशन आ रहा है, नाम है चिकलोली करके. Yes. उससे बदलापुर के प्राइसेस कम हो गए या फिर बदलापुर के प्राइसेस बढ़ेंगे? और एज ए डेवलपर मैं तो होप करूंगा बढ़ेंगे ही. तो बिकॉज नॉट ओनली चिकलोली रेलवे स्टेशन बट और भी कई सारी चीजें आ रही है एंड दिस इज ऑल ड्यू टू द पॉपुलेशन. मतलब एक हिसाब से आप देखोगे तो ये तारीफ ही है बदलापुर का कि इतने लोग अभी बदलापुर में रहने के लिए आ रहे हैं एंड पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है कि दैट दे हैड टू मेक अनदर रेलवे स्टेशन इन बिटवीन बदलापुर एंड अंबरनाथ. तो वी ओनली टेक दिस एज अ पॉजिटिव फॉर बदलापुर. Slowly and steadily the prices will rise, but along with that प्राइजेस बढ़ने के साथ क्या होता है कि बदलापुर इज स्टिल अ मार्केट विच वी कैन कॉल अ वैल्यू फॉर मनी मार्केट, VFM, जो कि आज के डेट में बहुत ही रेयर होता है. तो बदलापुर में आज भी जब लोग घर लेते हैं उनको बहुत वैल्यू फॉर देयर ओन मनी दे गेट इन टर्म्स ऑफ देयर एरिया, इन टर्म्स ऑफ देयर एमिनिटीज, इन टर्म्स ऑफ देयर कम्युनिटी दैट दे आर बाइंग इनटू. So that is how Badlapur is shaping up to be different from any other cities across. बदलापुर से इंटरनेशनल एयरपोर्ट नवी मुंबई का लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 30 मिनट में पहुंचा जा सकता है. कि ये पॉसिबल है? हाँ, श्योरली, बिकॉज अभी राइट नाउ द रोड ऑन विच वी आर ड्राइविंग अलोंग, दिस इज द इनर पनवेल हाईवे एंड इसके एंड में एक बदलापुर पनवेल टनल बन रहा है. इट इज ऑलमोस्ट रेडी नाउ. इट स्ट्रेचेस अलोंग 4.5 किलोमीटर्स एंड दैट इज द रीजन कि ये जो क्लेम है इट इज वेरी ट्रू दैट यू कैन रीच नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट in 30 minutes. Along with that, as you might know, the JNPT बड़ौदा highway that is coming up. So उससे क्या होने वाला है कि जो विरार JNPT का जो डिस्टेंस है that is being very much shortened and also logistics delivery and ये सब के लिए बहुत सपोर्ट होगा. The added benefit और the लॉन्ग टर्म बेनिफिट है उसका कि अराउंड बदलापुर और वांगनी का जो एरिया है जहाँ पे ये हाईवे कट करता है वहाँ पे एक कमर्शियल हब होने वाला है फॉर दिस लॉजिस्टिकल सपोर्ट. तो इट विल ओनली इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अराउंड बदलापुर. एंड जब ऐसा हाईवे कनेक्टिविटी आता है जैसे JNPT बड़ौदा हाईवे हो गया, ये हमारा पनवेल हाईवे हो गया, तो एंड एज वी प्रीवियसली टॉक्ड अबाउट द मेट्रो लाइन एंड एवरीथिंग, तो इससे क्या होता है एक सिटी का जो वैल्यू है इट इंक्रीजेस फार मोर एंड वी फील वेरी प्राउड कि दिस इज ऑल हैपनिंग इन एंड अराउंड बदलापुर. बदलापुर में बहुत से लोगों के हाथ में स्कैम हुआ. कुछ एक डेवलपर्स ऐसे हैं, नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने प्रोजेक्ट तो लॉन्च किया बट पैसा लिया और गायब हो गए. ना पोजेशन हुआ और घर वालों का पैसा भी डूब गया. एज ए डेवलपर, एज ए थानेकर ग्रुप, आपने 50 कंप्लीटेड प्रोजेक्ट सिर्फ बदलापुर में बनाया हुआ है. सो हाउ ए बायर कैन आइडेंटिफाई अ गुड डेवलपर एंड अ बैड डेवलपर? तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वी रिसाइड, मतलब हम लोग खुद रहते बदलापुर में ही है. सो वी आर अ लोकलाइट. वी हैव मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन एंड अराउंड बदलापुर. जैसे other projects of us are still in going on in Badlapur. We have this great initiative through Thanekar Foundation that we call People of Thanekar. People of Thanekar is a community that we are trying to build, जिसमें कि we connect to the old residents of Thanekar societies, जैसे Thanekar Palacio, Thanekar Civic, Thanekar Hillcrest, Parkland and many previous projects. So we try to keep in touch with them through celebration of festivals,
through let's say we organized a cricket league where everyone did participate in that. We organized blood donation camps in the societies. We organized some health checkup camps in the societies. We are in the future we are planning to organize some events for their kids, maybe some competition or maybe something that they can take advantage of. तो इससे होता क्या है कि जो पुराने रेसिडेंट्स हैं उनको पता है कि अपना बिल्डर बदलापुर में ही रहता है. नॉट ओनली दैट, ही कीप्स इन टच विद अस, ही डज सम गुड थिंग्स फॉर अस, एंड उनका एक ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाता है इससे. और एक कम्युनिटी जब आप बिल्ड करते हो तो कहीं ना कहीं वो एक फैमिली वाली फीलिंग आ जाती है कि बिल्डर नहीं, वो फैमिली मेंबर जैसे ही हमको ट्रीट करते हैं. जो भी होता है पूरे हक से बोलते हैं, हमको हक से बताते हैं कि वी आर हैप्पी विद दिस थिंग, दिस इज अ स्लाइट कंसर्न. तो एंड वी नेवर, मतलब हम कभी अपना ये नहीं करते कि वी डोंट शो आवर बैक टू आवर ओन पीपल. तो जो भी है हम लोग ऑनेस्टली वी आर देयर टू आंसर फॉर देम, एंड दैट इज व्हाई दे हैव देयर एंटायर trust to us. And people of Thanekar is one of the key reason. This is like a bridge between our residents and us, people of Thanekar, the community. So we are very proud of that. मुंबई से जो होम बायर्स है वो बदलापुर शिफ्ट नहीं होने का रीजन ऐसा बताते हैं लोग कि यहाँ पे अच्छे स्कूल्स नहीं है. तो आपका इसके बारे में क्या कहना है सर? I certainly disagree to that, because if you ask me, we have our own school, Thanekar International School. It's a CBSE school. And not only our school, there are many schools in Badlapur. कुछ state board है, कुछ CBSE है, and all of them are great schools. मतलब I can, as a school owner myself, I can vouch for any school that no school does any less effort for students. तो सब schools अपने अपने end से maximum try करते हैं to provide the best education, to provide the best sports infra and everything. परसेप्शन ये बन जाता है लोगों का जो टीयर 1 में है, टू लुक एट टीयर 2 सिटीज इज कि यहाँ पे स्कूल्स और हॉस्पिटल्स नहीं है बराबर. बट दैट यू डोंट नो अनलेस एंड अंटिल यू कम एंड विजिट द सिटी, कम एंड टेक रिव्यूज फ्रॉम. एंड रियल एस्टेट का एटलीस्ट ऐसा है कि आप एक बार विजिट करके आपको पता चल जाता है हाउ द प्रोडक्ट इज एंड हाउ द रेट इज. स्कूल्स का तो यू हैव टू टेक रिव्यूज ऑफ द रेसिडेंट्स हु आर रिसाइडिंग इन दैट सिटी कि how is your school and how is the education and everything. And as far as Badlapur parents are concerned, I think they are more than happy with what schools offering Badlapur has for them. थाने वर्सेस बदलापुर, व्हाट वुड यू प्रेफर? आप उस एंगल से ना देखो कि आप बचपन से बदलापुर में रहे इसलिए आप बदलापुर बोलोगे. एक जस्टिफाइड आंसर दो ताकि जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी एक सेटिस्फेक्शन मिले आंसर सुन के. Sir, even though I was born and raised in Badlapur, for a let's say short period of my life, मैं थाने भी चला गया था रहने के लिए, बट फिर मैं वापस बदलापुर आया रहने के लिए. सो दैट आई थिंक आंसर्स एवरीथिंग. मैं वापस आया बदलापुर रहने के लिए. तो दोज हु लव बदलापुर, दे कांट रियली गो अवे फ्रॉम बदलापुर फॉर टू लॉन्ग. तो फॉर मी इट इज बदलापुर. बट व्हाई बदलापुर? Badlapur, why? Because for me it is my hometown. But in general, if I have to say, again the value for money factors comes in. कि जो वैल्यू फॉर मनी बदलापुर ऑफर करता है आपको इन टर्म्स ऑफ योर हाउस परचेज, वो एमिनिटीज बोलो, एंड पार्किंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आज के डेट में. सो ऑल ऑफ दैट, एंड बदलापुर हैज मोर पोटेंशियल नाउ टू ग्रो देन एनी अदर सिटी surrounding Badlapur. So for that reason alone, I would say Badlapur. अगर सिर्फ 1 लाख रुपए है तो क्या मैं बदलापुर में घर ले सकता हूँ? 1 लाख रुपए में तो हाँ, it is possible through various schemes of banks. Our associated banks, a lot of them do give out this a scheme of 99% loan and 1% OCR. So through that it is possible, and we are very happy to welcome any customer. सिर्फ लोन का एलिजिबिलिटी सामने वाले का होना चाहिए. यस यस. तो 1 लाख रुपए में घर नहीं मिल रहा है, घर वही 35-40 लाख रुपए का है, बट 1 लाख रुपए एज टोकन, बाकी आपको बैंक लोन लेना पड़ेगा. यस यस श्योर. मुंबई में पार्किंग का आज के टाइम पे बहुत इशू है. सारी गाड़ियां रोड पे खड़ी रहती है, उसके कारण पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है और उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है. सोल्यूशन है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है.
तो सेम चीज बदलापुर में भी हमें देखने मिलेगी, या फिर बदलापुर के पास में और कोई नया तरीका है इसको सॉल्व करने का? सो सर बदलापुर में करंटली तो पार्किंग का कोई फियास्को नहीं है. इन इवन इन आवर प्रोजेक्ट्स वी आर प्रोवाइडिंग पार्किंग टू ईच एंड एवरी फ्लैट. 1:1 हम लोग रेशियो मेंटेन करके चलते हैं एंड एवरीवन गेट्स देयर ओन पार्किंग. ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर किसी को मन चाहे जगह पे पार्किंग मिले, बट अभी तक तो बदलापुर में देयर इज़ नो इशू ऑफ पार्किंग एट ऑल. स्पीकिंग ऑफ द फ्यूचर तो वो तो कोई बोल नहीं सकता आगे कैसा होगा, बट बदलापुर के पास जितना रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है एंड जितना एरिया है उसमें इट इज अगेन up to the developer to plan it in a way that the parking fiasco never emerges. It is always controlled, and I am sure with the builder association that we have in Badlapur, everyone plans and everyone does foolproof planning before marching on ahead. and इसीलिए लोग जब भी विजिट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स तो वो हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस इज पार्किंग. लेकिन जो हमारा प्लानिंग जब वो देखते हैं देन दे आर मोर देन सेटिस्फाइड विद आवर प्लानिंग, एंड इसलिए वो शायद हमारे पास घर ले. बदलापुर में जो रहने वाले लोग हैं आज के टाइम पे उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? व्हाट आर द इश्यूज दे आर फेसिंग? I think in certain parts of Badlapur, you can say जैसे कभी कभार वाटर लॉगिंग और ये सारे इश्यूज हो जाते हैं, बट अभी जैसे रिसेंटली मॉनसून हुआ तो क्वाइट हैवी रेनफॉल था. कुछ कुछ एरियाज में वो हुए थे, बट आई थिंक इन अ स्पैन ऑफ 24 hours it was resolved quickly. And again अभी quickly they are building up such great infrastructure with regards to the drainage line and everything कि अभी मुझे नहीं लगता अभी वापस बारिश आया तो वो इशू वापस होने वाला है. अदर देन दैट तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर इशू इन बदलापुर. मुंबईकर का एक मेंटालिटी है जो मुंबई में रहते हैं, उनके माइंड में ऐसा है कि बदलापुर एक स्टैंड अलोन बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कोई एमिनिटीज नहीं मिलेगी, इसीलिए लोग बदलापुर आने से या इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे. ऐसा कैसा अपने बिल्डिंग में ऐसा क्या खास बात है जो हम लोगों को बता सकते हैं एमिनिटीज के रिलेटेड? नहीं मतलब इफ आई हैव टू आंसर दैट फ्रॉम आवर ओन पॉइंट ऑफ व्यू देन वी डोंट रियली नाउ बिल्ड स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स. अभी तो नॉट ओनली अस, आई थिंक मोस्ट ऑफ द बिल्डर्स अभी बदलापुर में कॉम्प्लेक्स और टाउनशिप्स ही कर रहे हैं. जैसे अभी अपकमिंग हमारा जो है दैट इज ठाणेकर बीकेसी, वही 25 acres का है. सो एमिनिटीज वाइज वी आर प्रोवाइडिंग द मैक्सिमम दैट वी कैन. लेट्स टेक जैसे बैंक्वेट हॉल चाहिए ही होता है आज की डेट में. अगर बैंक्वेट हॉल नहीं तो एटलीस्ट एक कम्युनिटी हॉल वेयर दे कैन come together and have a meeting, general discussion, और let's say a birthday party, और maybe कभी कभी एक marriage function भी वहाँ पे हो जाता है. वो आज की नेसेसिटी है. a good top tier security is a must. and उसके बाद जैसे लिफ्ट फैसिलिटी या फिर 24/7 पावर बैकअप होना चाहिए. तो अक्रॉस बदलापुर ये सब कुछ प्रोवाइड होता ही है. दीज आर द मेन amenities which are, we spoke about parking as well. तो ये सारी amenities are the necessary amenities which is what बदलापुर में पहले फोकस की जाती है. एंड अगर इफ आई हैव टू से अबाउट कंपैरिजन विद द टीयर 1 या फिर मुंबई की जो सिटीज है वहाँ पे, तो वहाँ पे आजकल फैंसी एमिनिटीज पे ज़्यादा फोकस हो रहा है. एंड बदलापुर अभी उसी रिगार्डिंग बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे जो नेसेसरी एमिनिटीज है विच आर लिस्टेड उस पे पहले फोकस किया जाता है. एंड देन योर theaters and spas and gyms and everything of that sort comes in. So all those necessary amenities हम लोग पहले टेक केयर कर लेते हैं जो कि बायर को पहले चाहिए. एंड दोज फैंसी एमिनिटीज अगर नहीं भी हो देन ऑल्सो इट इज फाइन. एक बिल्डिंग में 100 फ्लैट है, ऑन एन एवरेज एक घर पे 4 लोग भी पकड़े तो 100 फ्लैट के हो गए 400 लोग. स्विमिंग पूल का साइज है 10x20 का, 10x15 का. तो ये 400 लोगों के लिए कि ये जो बाथटब जैसा स्विमिंग पूल है वो सफिशिएंट हो पाएगा, या फिर कस्टमर को अंडर कंस्ट्रक्शन में चेक करना चाहिए कि उसको एमिनिटीज का साइज क्या मिल रहा है,
ये कितना इम्पोर्टेंट है? आई थिंक ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो बिल्डर डेवलपर आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं ये एमिनिटीज दे रहा हूँ, वेदर इट बी अ बैंक्वेट हॉल, वेदर इट बी अ स्विमिंग पूल, वेदर इट बी अ जिम, तो वो कितना बड़ा जिम है या फिर कितना बड़ा स्विमिंग पूल है, बिकॉज कहीं ना कहीं इफ मेरे सोसाइटी में जिम है तो मैं तो ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ कि मैं तो बाहर जाऊंगा ही नहीं फिर जिम करने, लेकिन कल को पता चला कि जिम है ही एक रूम जितना जिसमें सिर्फ एक ट्रेडमिल और क्रॉस ट्रेनर है, तो उसमें तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। सिमिलरली इन स्विमिंग पूल ऑल्सो, इफ आई हैव अ स्विमिंग पूल इन माई सोसाइटी, तो मेरा है कि मेरा बच्चा भी उसमें स्विमिंग सीख जाएगा, बट अगर स्विमिंग पूल ही इतना छोटा है तो फिर वो पॉसिबल नहीं। सो दैट इज वाई बिल्डर डेवलपर को ये भी सोचना है प्री प्लान करने से पहले कि अगर बिल्डिंग में इतने ही फ्लैट है तो क्या एमिनिटीज देना ज्यादा जरूरी है, और क्या एमिनिटीज अगर नहीं भी दिए तो चल जाएगा। कमिंग टू अस, जैसे इन आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट वी हैव थॉट अबाउट इट फ्रॉम द फीडबैक ऑफ द प्रीवियस कस्टमर्स, तो हमने इस प्रोजेक्ट में लेडीज और जेंट्स का स्विमिंग पूल अलग अलग दिए, सो वो उससे ऑलरेडी लोग काफी खुश है। जिम ऑल्सो, देर इज अ सेपरेट जिम फॉर फीमेल्स एंड देर इज सेपरेट जिम फॉर मेल्स, विच इज बोथ इक्वली एज बिग एज एनी जिम यू विल फाइंड इन बदलापुर। सेम फॉर द स्विमिंग पूल एज वेल। जो क्लब हाउस है वही हमने एक अलग प्लॉट में 20,000 स्क्वायर फीट का बना दिया है, सो दैट अलाउज अस अ लॉट ऑफ रूम फॉर प्रोवाइडिंग दीज एमिनिटीज एज जिम एंड स्विमिंग पूल, बिकॉज ये एमिनिटीज कहने को फैंसी एमिनिटीज है, बट अगर आपको देना है तो फिर प्रॉपर वे में आपको देना चाहिए। जस्ट गिविंग अ बाथटब एंड कॉलिंग इट स्विमिंग पूल, दैट डजंट हेल्प। 1 BHK में मिनिमम कारपेट एरिया, जो घर के अंदर अब कारपेट एरिया आता है, वो कितना होना चाहिए? मैंने देखा है मुंबई में कुछ एक नया नया लॉन्च अभी हुआ है, उसमें कारपेट एरिया है 250 स्क्वायर फीट का, 300 स्क्वायर फीट का, उसमें 1 BHK बनाया हुआ है, और 1 BHK तो बनाया ही बनाया है, प्लस दो दो बाथरूम दिया हुआ है, एक मास्टर बेडरूम और एक लिविंग रूम में भी अटैच वॉशरूम वगैरह दिया हुआ है। वो 300 स्क्वायर फीट में सब फिट हो गया। तो बदलापुर में भी ऐसा रूम देखने को मिल रहा है हमें? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। एंड मतलब ऐसा कंपैरिजन तो नहीं कर सकते बिटवीन एनी अदर सिटीज, बिकॉज माइट बी वहाँ के रेस्ट्रिक्शंस एंड रेगुलेशंस अलग होंगे कंपेयर टू अस, बट यहाँ पे जैसे मैंने बोला, यू गेट वेरी गुड वैल्यू फॉर योर मनी। तो 1 BHK का जैसे हमारे यहाँ पे जो बिल्डअप एरिया हम जिसको बोलते हैं, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 700 स्क्वायर फीट, तो उस हिसाब से आप इमेजिन कर सकते हो 1 BHK का, तो उस हिसाब से आप इमेजिन कर सकते हो कि वो कितना स्पेशियस है। इवन फॉर 1 BHK इट इज मोर देन स्पेशियस, एंड जनरली इन बदलापुर ओनली यू विल फाइंड मोर देन स्पेशियस फ्लैट्स देन कंपेयर टू योर मुंबई, थाने एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बदलापुर में प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे बन रहे हैं, बट आपके प्रोजेक्ट में ऐसा कौन सा स्पेशल एमिनिटीज है जो बाकी के प्रोजेक्ट्स पे नहीं है? सर लाइक आई मेंशन्ड, ये तो है ही अपना सेपरेट जिम एंड सेपरेट स्विमिंग पूल्स फॉर फीमेल्स एंड मेल्स, वो तो है ही। बट अनदर थिंग दैट वी ऑब्जर्व्ड एंड इम्प्लीमेंटेड इन आवर अपकमिंग प्रोजेक्ट इज अ कोवर्किंग स्पेस, बिकॉज अभी बहुत वर्क फ्रॉम होम प्रोफेशनल्स है, राइट? तो घर पे भी अगर वो काम कर रहे हैं फिर भी उनको वो ऑफिस वाला एनवायरनमेंट एक अगर मिल जाए तो फिर इससे बढ़िया और कुछ नहीं। तो what we have done is co-working space along with a cafe, उसके बाजू में ही along with a gym, तो उनको एक एंटायर जैसे कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट वहाँ पे मिल रहा है। एंड अनदर थिंग इज, इफ लेट्स से हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, तो बच्चा जब स्कूल से घर पे आता है देन देयर इज नो वन टू टेक केयर ऑफ, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तो व्हाट वी हैव डन इज वी आल्सो गिवन अ चिल्ड्रन डे केयर फैसिलिटी इन द प्रोजेक्ट इटसेल्फ। Okay. So your child will directly get drop off to the daycare facility, and whenever you come back from your job, you can just receive him from over there. तो ये एक necessary है, rather than calling it an amenity, it is a necessity that we observed from our previous customers and even from the parents of our own school, and implemented it in the coming project. टॉप 3 थिंग्स जिसकी वजह से बदलापुर बहुत ज्यादा फेमस हो गया? टॉप 3 थिंग जिसकी वजह से बदलापुर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया इज we still have a good AQI as compared to other Compared to cities. Bombay, yes. यहाँ की हवा अभी भी बहुत अच्छी है।
यहाँ का फूड, द लोकल फूड ऑफ बदलापुर, वैसे आप स्ट्रीट फूड पकड़ लो या फिर आप रेस्टोरेंट्स पकड़ लो, सो बहुत लोग खास बदलापुर आते हैं जस्ट टू हैव अ बाइट ऑफ द फेमस मुर्गा वड़ा पाव बोल दो या फिर मिसल बोल दो, या फिर रेस्टोरेंट्स भी यहाँ के बहुत फेमस है तो फूड सेकेंड थिंग. एंड द थर्ड थिंग इज द टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस. जैसे यहाँ से माथेरान आधे घंटे की दूरी पे है. You have करजत में बहुत अच्छे अच्छे फार्म हाउस है for a good stay. There is Barwi Dam that you can go and visit. There is obviously Murgaon ka temple that you can go and visit. There is Kondeshwar waterfalls that you can go. तो ऐसे numerous tourist attractions भी है बदलापुर में, which keeps it close to the nature, which keeps it pure, and the food keeps it very lively.